Good morning, student. Am I audible? Yes. Yes, all of you. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, okay. Okay, let's start with the last point now. I hope so that it will be our last lecture for this particular chapter. So I think last time we have completed with the Basel. Okay, now today we have to start with the banking crisis in India. What exactly the problem faced by the India related to banks? Okay, so that we will going to see here. Okay. See, one of the most pressing problem affecting the Indian economy these days is the poor health of its banking system. The rising percentage of non-performing asset where borrowers default on repaying loans to banks has reached alarming levels. In response to question in Parliament in November, the government revealed that the total non-performing asset of 49 Indian public and the private sector bank has risen to rupees 1.5 lakh crore. In terms of non-performing asset as a percentage of overall loans made by the Indian banks, the figure is as much sorry as high as 20.2% for the some bank like the Indian Overseas Bank. See, what are they trying to say here? The main problem, the root cause of the banking system is what nowadays? It is about the non-performing asset. Everybody knows like what is non-performing asset. Can anyone tell me from your like what do you mean by the non-performing asset of the bank? क्या कब नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा क्रिएट होता है बैंक में? हु विल टेल मी? यस. मैम लोन हाँ. ज्यादा प्रोवाइड करने पे बिना विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। क्या क्या फिर से एक बार बोलो. मैम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने के बाद मतलब नहीं मिलता है, लोन रिकवर नहीं होता है। हाँ, मेन मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लोन रिकवर नहीं कर पाती है बैंक. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन बैंकिंग का. एंड व्हेन वी आर नॉट एबल टू रिकवर दोज लोन, so that is coming into your non performing asset. And what are they saying here? Nowadays almost 20.2% का अभी तक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ओवरऑल अगर हम लोग बैंकिंग में देखेंगे तो. ठीक है. So debt recovery tribunal were set up under the recovery of debts due to banks, Recovery of Debt Due to Banks and the Financial Institution Act 1993, with the aim of streamlining the mechanism to recover bad debts. This process was earlier handled by the civil courts before being shifted to 38 debt recovery tribunals and have 5 debt recovery appellate tribunals across the country. Since their conception, these tribunals have been dogged by the concern about their judicial independence because the Ministry of Finance, which controls the public sector bank, has had significant influence on them. तो उन्होंने क्या कहा कि उसके लिए स्पेशली ये जो भी नॉन परफॉर्मिंग असेट थे उसको रिकवर करने के लिए दे हैव कम आउट विद द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल एक्ट 1993. और पहले कैसे था कि ये जो पूरा केसेस था दैट यूज टू गो टू द सिविल कोर्ट. ठीक है. लेकिन अभी क्या होता है कि नाउ इवन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो टेकिंग पार्ट इनटू दिस कि कैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हम लोगों को ज़्यादा नहीं क्रिएट होने देना है करके. ओके. So now we will see the first thing here, asset quality. The biggest risk to India's bank is the rise in the bad loans. The slowdown in the economy in the last few years led to rise in bad loans or non-performing assets. These are the loans which are not repaid back by the borrower. They are thus a loss for the bank. Net not performing asset amount to only 2.36% of the total loans in the banking system. This may not seem like an alarming figure. However, it does not take into restructured asset. When a borrower is unable to pay back and the bank makes the loan more flexible to be paid back over a longer period of a time. Restructure asset to put pressure on the bank's profitability. Together, such stress assets account for 10.9% of the total loans in the system, and these are just the loans which are identified as stress assets. 36.9% of the total debt in India is at risk. According to International Monetary Fund report, eight banks have capacity to absorb only 7.9% of loss. So if these debts are turned bad to, bank will face major losses here. What are they saying here? कि if नॉन परफॉर्मिंग असेट इज कमिंग टू अराउंड 2.36%, तो ये कोई अलार्मिंग वाला फिगर नहीं कि नहीं चलो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है करके.
but they are saying like if it will going to happen continuously, then it will going to have the alarming figure. And they have given the stress asset almost 36.9% of the total debt in India है, तो वो और भी ज़्यादा रिस्की है करके. सो व्हाट आर दे सेइंग यार कि इमीडिएटली उनके ऊपर जो भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं छोटा मोटा अमाउंट है करके, छोटा मोटा नॉन परफॉर्मिंग असेट का अमाउंट है, but that we cannot totally avoid it because we have to, as a bank they have to work on it. And why these non performing assets are basically creating, because when the Indian economy or any of the economy is not performing well, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे लोन लेते हैं लोग, तो ऑब्वियसली उसको रीपे करने का ताकत रहता है उनके पास करके वो लेते हैं. ओके, बट रीपेमेंट करने के लिए अगर उनका अचानक से जॉब चला जाता है, इफ दे आर नॉट एबल टू हैव दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूसली, या फिर उनको कोई लॉस होता है, एंड दिस लॉस इन एवरीथिंग विल गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, तो अगर वो नहीं हो पाता है तो इसके लिए ज़्यादा बैड डेट वहाँ पे क्रिएट होते रहते हैं. So what is their main purpose of saying here that the economy should be perform very well, then only we will going to have the good asset quality. Otherwise, always we will going to get the non-performing asset only. Next उन्होंने कहा है कि capital adequacy. One way a bank tries to ensure it is protected from a bad loan is by setting aside money as a provision. उन्होंने क्या कहा है कि अगर नॉन परफॉर्मिंग असेट लगता है किसी भी बैंक को कि वो नहीं होना चाहिए, अगर वो हो भी जाता है तो अपने पास कुछ ना कुछ सिक्योर मनी होना चाहिए. सो एवरी टाइम उन्होंने कहा कि बैंक वो बैड लोन्स को हैंडल करने के लिए खुद के लिए पैसे का एक प्रोविजन साइड में रखती है कि इतना पैसा हम लोग साइड में रखेंगे, उसको किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे. दिस मनी कैनॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज इंक्लूडिंग लेंडिंग. एज अ रिजल्ट, banks have lower capital available to use for its various operation. The capital adequacy ratio measures how much capital a bank has. When this falls, the bank has to borrow money or use depositor money to lend. This money, however, is riskier and costlier than the bank's own capital. For example, a depositor can withdraw his or her money anytime they want. So, fall in the CAR, often called as the CRA, or that we can say the capital to risk asset ratio, is worrisome. In the last few years, CRAR has declined steadily for Indian banks, especially for public sector banks. Moreover, banks are not able to raise money easily, especially public sector banks which have higher number of bad loans. If banks do not shore up their capital soon, some could fail to meet the minimum capital requirements set by the RBI. In such a case, they could face a severe issue. What they are saying here about this is about the capital adequacy. ठीक है, सो कैपिटल एडिक्वेसी मतलब कि क्या होता है कि बैंक को खुद के पास उतना कैपिटल हमेशा रखना चाहिए कि एक इमरजेंसी पीरियड के लिए, जैसे आई ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल कि कभी कभार क्या होता है कि एक ही किसी पर्टिकुलर डे में बहुत सारे लोग पैसा मांगने के लिए आ जाते हैं बैंक के पास, तो इमरजेंसी वे में उतना सब पैसा तैयार रखना, उतना कैश रेडी रखना विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एनी ऑफ द बैंक. तो उस टाइम पे अगर कुछ भी नहीं रहा तो दे नीड टू अप्रोच द आरबीआई दैट दे आर इन द नीड ऑफ कैश एंड ऑल. ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए करके हर एक बैंक को अपने पास एक सेफर साइड में कुछ रखना चाहिए. सो उन्होंने नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन परफॉर्मिंग असेट. सो नॉन परफॉर्मिंग असेट ना हो, किसी भी बैंक को वो असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इसके लिए क्या होता है कि हर एक बैंक अपना जो एक सर्टेन अमाउंट वो साइड में रखता है, और वो अमाउंट ना वो लेंडिंग के लिए मतलब किसी को देने के लिए यूज़ करता है ना किसी और चीज़ों के लिए यूज़ करता है. इफ समवेयर इफ दे आर फाइंडिंग कि नहीं उनके बैलेंस शीट में वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक इट शोज लॉट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो वहाँ पे वो एटलीस्ट उस फंड को वहाँ पे यूज़ करके अपना बैंक का लाइसेंस का बचा सकता है. लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अगर बैंक ऐसे मैक्सिमम अमाउंट एज ए कैपिटल करके वो साइड में रखेगा तो उसको बाकी लेंडिंग पर्पस के लिए ज़्यादा पैसा नहीं रहता है. अगर लेंडिंग पर्पस के लिए ज़्यादा पैसा नहीं बचेगा देन ऑब्वियसली दैट बैंक विल नॉट एबल टू गेन द प्रॉफिट ऑल्सो, तो वहाँ पे उसको लॉस फेसेस करना पड़ता है. और जनरल उन्होंने कहा है कि दिस थिंग इज बेसिकली हैपनिंग विद द पब्लिक सेक्टर बैंक, बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या रहता है कि हर एक लोगों का अकाउंट दिया जाता है, देन अगेन by following the government protocols and all they need to give the loans to the certain public कि जो शायद repay भी नहीं कर पाएंगे करके. But ultimately what will going to happen here, this banks only basically if you compare the public bank and the private sector bank, so the public sector the banks are having many non performing asset as compared with the private sector bank. Okay, so this is what they are saying, the capital adequacy शायद कम हो जाता है करके because of non performing asset. Next year, unhedged forex exposure. See,
The wild gyrations in the forex market have the potential to inflict significant stress in the books of Indian companies who have heavily borrowed abroad, Mudra said in his speech. This stress can affect their ability to pay back debt to Indian banks. As a result, the RBI warned banks to ensure companies they lend to do not expose themselves to unnecessary debt in dollars. Okay, so what are they saying here कि मतलब कंपनीज बेसिकली इंडियन बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा लेती है फॉर डूइंग दर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटी मतलब वहाँ पे फॉरेन मार्केट्स के जो भी मतलब व्हाट वी कैन से सपोज वी आर इम्पोर्टिंग सम कमोडिटी सो ऑब्वियसली हमें उनके कंट्रीज के डॉलर में ही उनके कंट्रीज के करेंसी में ही हमें पेमेंट करना पड़ता है करके ओके सो नाउ डेज यू ऑल्सो कम टू नो कि कमर्शियल बैंक के पास भी अथॉरिटी दिया गया लाइक दे कैन ऑल्सो डील इन दिस ट्रांजैक्शन इन इंटरनेशनल मॉनिटरी ट्रांजैक्शन तो वहाँ पे वो लोग डील कर सकते हैं लेकिन उन्होंने एक सजेशन दिया है कि बैंक को थोड़ा अभी अलर्ट रहना चाहिए कि बैंक किसी भी कंपनीज को इतना भी फेवरिज्म ना करे कि लिटरली उनका मैक्सिमम डॉलर का बर्डन उनके ऊपर आ जाएगा करके बिकॉज फॉरेक्स मार्केट को हैंडल करना है बाहर की करेंसी को हैंडल करना है तो उससे पहले कि अपने पास भी उतना स्टोरेज होना चाहिए और अपने पास भी उतना एक्सपोर्ट वाला व्हाट वी कैन से एक्सपोर्ट करने का उतना क्वालिटी होना चाहिए and if you are exporting the less commodity then obviously that Indian bank will going to get the अगर हमारे पास उतना एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं रहेगा एक्सपोर्ट हम लोग नहीं करते देन डेफिनेटली वी आर नॉट एबल टू गेट द फॉरेन करेंसी तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इंपोर्ट इतना भी ना करे और कोई भी बैंक किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को इतना भी लेंड मतलब पैसा लेंड ना करे ये सब एक्टिविटीज करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी करने के लिए कि जो इंडियन बैंक के ऊपर ही ज़्यादा लोन आ जाएगा करके ओके सो उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से then employee and technology. Public sector banks are seeing more employees retired these days. So younger employees are replacing the elder, more experienced employees. Okay, this however happens at junior level. As a result, there would be a virtual vacuum at the middle and the senior level. The absence of middle management could lead to adverse impact on banks' decision-making process. As this segment of officer played a critical role in translating the top management strategy into workable action plan, the deputy governor said. Moreover, banks, especially government-owned banks, need to embrace technology to offer better products. This will also make banks more efficient. What they are saying about the employee and the technology. They are saying that the younger employees are replacing the elder one. ठीक है और वी कैन से द मोर एक्सपीरियंस एम्प्लॉय अभी क्या हो रहा है कि रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है करके तो रिटायरमेंट ज़्यादा हो रहा है तो उसके जगह पे जो भी किसी को रिक्रूट किया जाता है सो दे आर कमिंग एट द जूनियर लेवल तो वो जूनियर लेवल पे आ जाते हैं बहुत सारे एक्सपीरियंस पर्सन चले गए हैं करके ओके तो ये सब तुम्हारा बैंकिंग सेक्टर के वर्किंग पे अफेक्ट करता है because the junior level at very junior level they are not that much experienced one so they really don't know like what to how to handle some critical situation and all those who are experienced उनका एक्सपीरियंस होता है कि ये सब सिचुएशन में क्या काम करता है करके so somewhat that the employee and the technology is also getting affected and technology के लिए उन्होंने कहा है कि अगर एम्प्लॉय नहीं आ रहे ना so at least अपने पास टेक्नोलॉजी ऐसा होना चाहिए that will going to have that will going to give the better product तो अभी आप लोग जनरली नोट करोगे कि पहले कैसे था कि बैंकिंग में पूरा डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही काम होता था लेकिन अभी ऐसा नहीं है इवन थ्रू द वर्चुअल और द ऑनलाइन बैंकिंग वी कैन डू द certain activities also so technology should given more importance into the banking sector here. Now, the last point here balance sheet management. In the past few years, many banks have tried to delay setting aside money as a provision ठीक है for a future bad loan. हाँ मतलब बैलेंस शीट में मतलब देखो पहले कैसा था कि एक प्रोविजन करके रखना है पैसा साइड में रखना चाहिए ये हर एक बैंक का ऑब्जेक्टिव रहता था लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि बैंक को सारे डिसीजन को है ना बहुत डिले करता है कि कितना पैसा साइड में रखना चाहिए फॉर हैंडलिंग द बैड लोन्स एंड ऑल so one reason for this is that the bank's chief executives have a short tenure during which time they want to post higher net profit and the share investors ओके उन्होंने कहा कि इसका रीज़न क्या होता है कि क्यों डिले करते हैं वो लोग कि एक अमाउंट हमें साइड में रखना चाहिए फॉर अ फ्यूचर बैड लोन्स एंड ऑल क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भी वहाँ पे मैनेजरियल पोजीशन पे आते हैं बैंकिंग सेक्टर में तो वो बहुत कम टेन्यूर के लिए आते हैं बिकॉज नाउ डेज कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम इज लाइक एवरीवेयर इट इज़ अवेलेबल कॉन्ट्रेक्चुअल तो कॉन्ट्रेक्चुअल में टाइम कम रहता है तो हर कोई अपने टाइम में ये दिखाना चाहता है कि नो वी आर अर्निंग प्रॉफिट सो दे आर नॉट रेडी टू
कीप अ सर्टेन पार्ट एज एन आइडियल वन। तो उनको लगता है कि नहीं, जो भी पैसा अवेलेबल है बैंक में उसको इस तरह से इन्वेस्ट करो कि मेरे टेन्योर में ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ मैंने ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दिया करके। ओके, so therefore this kind of a decision is been taking delay here. And then differing provisioning is harmful in the long term. It reduces the bank's ability to withstand financial pressure. This is even more problematic considering the poor capital adequacy in Indian bank. In fact, investor would be more happy if the management addresses and sort out problems rather than posting high net profit that cannot be sustained in the long term, the deputy governor said here. तो उन्होंने क्या कहा है कि बैलेंस शीट मैनेजमेंट में नॉर्मली अभी ऐसा हो रहा है कि हर एक बैंक का जो मैनेजरियल पोजीशन पे जो लोग बैठे हुए चीफ एग्जीक्यूटिव है, दे आर देयर फॉर द वेरी शॉर्ट टेन्योर एंड दे रियली वांटेड टू शो दैट दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो उसके लिए वो लोग अपने पास कोई साइड में पैसा ज़्यादा रखते नहीं है बैंक के पास। और ये क्या होता है, लाइक दिस विल गोइंग टू क्रिएट द फाइनेंशियल प्रेशर ऑन दैट बैंक फॉर द फ्यूचर टाइम पीरियड। तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा होना तो जो कैपिटल एडिक्वेसी के लिए हम लोग पैसा साइड में रखते हैं ना, ये तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है कि हम लोग वो भी नहीं रख रहे, ना पैसा साइड में रखने और हम लोग टोटली रिस्क पे चल रहे हैं करके। तो उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने इन्वेस्टर के सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, ना कि मैनेजमेंट ने टोटली नेट प्रॉफिट के पीछे लगना चाहिए करके। सो दिस इज व्हाट देयर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस बैंकिंग क्राइसिस। तो अभी हम लोगों ने कितने पॉइंट देखे, वी हैव सीन द 5 पॉइंट्स हियर फॉर द बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया। वन इज द असेट क्वालिटी। तो असेट क्वालिटी में क्या रहेगा, जनरली नॉन परफॉर्मिंग असेट कम करना है करके, दिस इज व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव है। दे हैव टू गिव मोर फोकस ऑन द नॉन परफॉर्मिंग असेट, दैट इट शुड नॉट गोइंग टू हैपन। देन द कैपिटल एडिक्वेसी का मीनिंग आपको समझा रहेगा कि एक अमाउंट साइड में रखना ही पड़ता है फॉर अ फ्यूचर। तो वो क्या करता है कि करंट प्रॉफिट कमाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज हम लोग ज़्यादा पैसा एक सिक्योरिटी पर्पज साइड में रख देते हैं और बाद में हम लोग उसको मतलब जो पैसा हम लोग प्रेजेंटली यूज़ कर सकते हैं लोगों को दे के देयर वी कैन अर्न द प्रॉफिट, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। देन अगेन अनहेज फॉरेक्स प्रेशर, सॉरी फॉरेक्स एक्सपोजर, मतलब यहाँ पे अनकंट्रोलेबल हम लोग मतलब फॉरेन करेंसीज के ऊपर अनकंट्रोलेबल उसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चालू रहता है, एक्सचेंज चालू रहता है, ट्रांजैक्शन चालू रहता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन करेंसी, तो वो पूरी तरह से कंट्रोल में होना चाहिए कि इतना ही करेंसी वी कैन नॉट मोटिवेट एनी ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी दैट दे शुड ऑलवेज टेक अ फॉरेन करेंसी फ्रॉम अस ओनली, और उनका देने का नाम ना रहे करके, वो लोग एक्सपोर्ट भी नहीं करते करके। तो वैसे कंपनी इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और बेसिकली फॉरेन करेंसीज के ट्रांजैक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देन द एम्प्लॉय एंड टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय के लिए आप लोग ऐसे बोलेंगे कि नहीं, जो एक्सपर्टीज़ है वो चले जाते हैं और उनके जगह पे जो रिप्लेसमेंट रहता है वो सारे यंगर्स रहते हैं, तो उनको इतना कुछ एक्सपीरियंस रहता नहीं है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करना चाहिए। एंड बैलेंस शीट मैनेजमेंट, यस वी कैन से बैलेंस शीट मैनेजमेंट में तुम लोग ये बोल सकते हो कि तो हर एक कोई एग्जीक्यूटिव बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहता है, तो उसको अपनी जगह पे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना रहता है, तो वो क्या करता है कि साइड में पैसा जैसे कैपिटल एडुकेसी रखता ही नहीं है और वो रिस्क लेते लेते आगे बढ़ता है, सो विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द any of the banks. Okay, so this is what your point of banking crisis in India. All these 5 points are clear to you, student. Shall I ask you one by one, what do you understood by the one point? चलो मुझे आप लोग में से कौन बताएगा एम्प्लॉय एंड टेक्नोलॉजी ये कैसे उन्होंने प्रॉब्लमेटिक कहा है, उसके लिए क्या सोल्यूशन कहा है? कैन एनीवन टेल मी यार? एम्प्लॉय एंड टेक्नोलॉजी बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया में एम्प्लॉय एंड टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने क्या कहा है कि क्या प्रॉब्लमेटिक है उधर एक्चुअली? हु विल टेल मी? यस, कोई नहीं बता पाएगा। मैम मतलब आजकल है ना, ये यंगर लोग को मतलब बैंक में ले रहे और जो इतने एक्सपीरियंस वाले हैं उनको निकाल दे रहे। उनको निकाल दे रहे हैं मतलब वो रिटायरमेंट हो रहे हैं ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, या फिर निकाल भी देते हैं तो जैसे कि प्राइवेट बैंक है सपोज, तो प्राइवेट बैंक में क्या होता है जितना तुम लोग सीनियर होते जाते हो तो सैलरी उतना ही तुम्हारा रेज होता रहता है, तो वो शायद किसी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, तो वो मतलब एक्सपीरियंस लोगों को भी निकाल देते हैं। तो वो प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने और एक क्या सोल्यूशन बताया कि ऐसा ना हो करके क्या करना चाहिए, फिर किस चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए उनके हिसाब से? यस निधि, किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए उन्होंने कहा है यहाँ पे? That the bank should use maximum employee or the technology?
टेल मी। बैंक मैक्सिमम इम्पैक्ट। मैक्सिमम एम्प्लॉय नहीं तो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को उन्होंने अभी थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर। ओके, देन हु विल एक्सप्लेन मी अबाउट व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी इन द बैंक। वो क्या रोल करता है नॉन परफॉर्मिंग असेट को नहीं होने के लिए। कैपिटल एडिक्वेसी क्या काम करेगा, कैसे, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी में हर एक बैंक क्या करता है नॉन परफॉर्मिंग असेट ना हो करके, बताओ। अपने पास थोड़ा पैसा बचा के रख। यस, अपने पास थोड़ा पैसा बचा के रखता है, लेकिन उससे वो बैंक को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है प्रेजेंट का। हु विल टेल मी। उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है। हाँ वेरी गुड, उसको ज्यादा लॉस मैम। हाँ लॉस में रहता है बिकॉज वो ज्यादा पैसा लेंड नहीं कर पाता है इसके लिए। वेरी गुड। ओके, देन हु विल टेल मी अबाउट दिस पॉइंट असेट क्वालिटी। उन्होंने किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया असेट क्वालिटी में, क्या बताया उन्होंने कि क्या होना चाहिए असेट क्वालिटी, बताओ। असेट क्वालिटी में उन्होंने किन असेट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। नॉन परफॉर्मिंग हाँ, एसेट। तो उनका क्या कहना है, नॉन परफॉर्मिंग असेट अगर आता है तो उसको कम अमाउंट में है तो वो लाइटली लेना चाहिए, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना चाहिए। व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। कम है तो ओके मैनेजेबल ऐसा सोचना चाहिए, फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए कि नहीं ये क्यों है करके, क्या सोल्यूशन ला सकते हैं करके। व्हाट यू से। They should work, ma'am. हाँ, दे शुड वर्क ऑन दिस नॉन परफॉर्मिंग असेट। वेरी गुड। ओके, बैलेंस शीट मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है, अभी लोग कैसे, अभी के लोगों का क्या साइकोलॉजी रहता है बैलेंस शीट मैनेजमेंट में, अभी के बैंक का वो लोग क्या करते हैं, क्या गलती कर रहे हैं। यस, कि ज्यादा से ज्यादा सेविंग। ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग हो या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। बैलेंस शीट मैनेजमेंट में अभी करंटली प्रॉब्लमेटिक फेस क्या है, मतलब क्या वहाँ पे ऐसा है कि लोग बैलेंस शीट मैनेजमेंट में बैलेंस शीट को कैसा दिखाने के पीछे हैं कि दे रियली वांटेड टू शो इट एज अ बैलेंस और दे रियली वांटेड टू शो इट दैट दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। ऐसा क्या, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, किसके पीछे पड़े हुए हैं। Profit. प्रॉफिट के पीछे। हाँ, प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं वो। सो प्रॉफिट दिखाने की वजह से दिखाने के लिए वो क्या क्या रिस्क ले रहे हैं एक्चुअली, वो क्या रिस्क ले रहे हैं बताओ, आएगा आप लोग में से कोई, क्या रिस्क ले रहे हैं वो लोग। हम्म, बोलो। यस, विवेक वांट टू से। विवेक। लोन दे। हाँ, वो क्या कर रहे हैं, लोगों, बहुत सारे लोगों को लोन देते जा रहे हैं और साइड में कुछ भी पैसा नहीं रख रहे, जैसे कि आप कैपिटल एडिक्वेसी रखना चाहिए ना उन्होंने साइड में कुछ ना कुछ अमाउंट तो, अगर हम लोग को रिकवर नहीं कर पाए तो। लेकिन वो लोग रिस्क ले रहे हैं कि जितना कैपिटल एडिक्वेसी कुछ रख नहीं रहे और डायरेक्टली पूरा पैसा देते ही जाते रहे, लोन देते देते जा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज जो चीफ एग्जीक्यूटिव रहते हैं बैंक के वो बहुत शॉर्ट टेन्योर के लिए रहते हैं। तो उनका चलता है कि नहीं, जितने पीरियड तक हम लोग एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव इस बैंक का काम कर रहे हैं तो मुझे वहाँ पे प्रॉफिट कमाना चाहिए करके, मुझे वहाँ पे दिखाना चाहिए दैट अंडर माय गाइडेंस दैट दिस वी हैव अर्न दिस मच प्रॉफिट एंड ऑल। ठीक है, ये सिचुएशन इज द प्रॉब्लमैटिक वन। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, अनहेज फॉरेक्स एक्सपोजर। इसके अंदर हम लोग बेसिकली किन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, फॉरेक्स एक्सपोजर मतलब हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, व्हाट डू मीन बाय द फॉरेक्स एक्सपोजर। फॉरेनर बैंक। हाँ, फॉरेनर बैंक नहीं, फॉरेनर बैंक मतलब हम लोग यहाँ पे फॉरेन करेंसी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने क्या सजेशन दिया है कि क्या करना चाहिए कि ऐसे मतलब हमारे कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा फॉरेन करेंसी का लोड ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, बताओ। हमारे हमारे कंट्रीज के ऊपर या फिर हमारे बैंक के ऊपर ज़्यादा फॉरेन करेंसी का लोड ना हो मतलब हम लोग उतना डेप ना, मतलब कर्जा ना ले फॉरेन करेंसी का, तो इसके लिए हमें क्या कैसे कंट्रोल करना है उस सिचुएशन को, व्हाट दे आर सेइंग। हम्म, बताओ। हमें ज्यादा लेन देन नहीं करना चाहिए। हाँ यस, हमें ज़्यादा लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और जहाँ पे ज़रूरत है उस जो चीज़ों की ज़रूरत है इंपोर्ट करने के लिए उसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। किसी को भी हर एक छोटी मोटी चीज़ों को इंपोर्ट करने का अलाव परमिशन देने की वजह से क्या होता है कि हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि हमें उनको करेंसी देना ही पड़ेगा, फॉरेन करेंसी।
ठीक है। तो इसके लिए हमें इम्पोर्ट एक्टिविटीज के ऊपर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, देन ओनली वी विल नॉट गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ अ foreign debt on us. Okay, so these are all we have seen the banking crisis in India. Now, critical evaluation of the banking industry in India. The banking system in India is the most extensive. The total asset value of the entire banking sector in India is nearly US dollar 270 billion. ओके, सो ये उन्होंने बताया कि टोटल असेट वैल्यू कितना है इंटायर बैंकिंग सेक्टर का। देन द टोटल डिपॉजिट इज नियरली ओके, एंड देन ट्रांसपोर्ट बैंकिंग सेक्टर इंडिया हैज बीन ट्रांसफर्ड कम्प्लीटली। या दिस इज ट्रू, जो अभी पहले जैसा बैंकिंग सेक्टर था अभी वैसा नहीं रहा, इट इज टोटली चेंज नाउ, so that we can say कि banking sector of India is being transformed. Third point, there presently the latest inclusions such as internet banking and the core banking have made banking operation more user friendly and the easy. You all are agree with this student? ऐसा हुआ है अभी? यस और नो? अभी ज़्यादा हम लोग इंटरनेट Yes, बैंकिंग ma'am. यूज़ करते हैं, पहले ऐसे नहीं था। पहले हम लोगों को लिटरली बैंक में जाना है तो एक दिन की छुट्टी निकालनी पड़ती थी और वहाँ पे बहुत लाइन में खड़ा रहना पड़ता था टू डू ऑल दिस एक्टिविटी। बट नाउ इवन बैंक अभी खुद भी पासबुक प्रिंट करके नहीं देता है। पासबुक प्रिंट करने के लिए हम लोग बोलेंगे तो बोलता है कि सीधा जाओ, बाहर मशीन लगा हुआ है, उधर से आप ही करो करके। सो नाउ वी डोंट नीड टू बी इन अ क्यू, और हम लोग को बैंक में रश करने की ज़रूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं कि बैंकिंग पीरियड के टाइम में ही जाके ऑल द बैंकिंग एक्टिविटीज़ वी कैन डू। अगर हमें कुछ नए से कुछ हमारा कुछ क्वेरी रहेगा, इवन क्वेरीज भी अपना ऑनलाइन सॉल्व हो जाता है। but still something we need to do, we need to visit to the bank, at that time only we are going and visiting the bank. Otherwise सब सारा काम मतलब पैसा निकालना, इवन पैसा डिपॉजिट करना, that all the things we are doing online and through the machines and all we are doing it. Okay, then almost 80% of the business are still controlled by the public sector bank. Public sector banks are still dominating the commercial banking system. Shares of the leading public sector banks are already listed on the stock exchanges. यस, अगर आप लोगों ने नोट किया रहेगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये रहता है, मतलब अपना स्टॉक मार्केट है उनका। देन अगर एक्सिस बैंक का स्टॉक मार्केट है, सो पंजाब नेशनल बैंक का है। सो हर एक बैंक अभी लिटरली स्टॉक मार्केट में एंटर कर चुका है करके। सो दे आर एट द पोजिशन ऑफ द डोमिनेटिंग. Now the RBI has given license to new private sector bank as a part of the liberalization process. The RBI has also been granting license to industrial houses. Many banks are successfully running in the retail and the consumer segment but are yet to deliver services to industrial finance, retail trade, small business and the agricultural finance. So what are they saying here? कि आरबीआई ने अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को, सॉरी प्राइवेट सेक्टर बैंक को लाइसेंस दे रहे हैं ये सब बैंकिंग एक्टिविटीज को फंक्शन करने के लिए, एंड दे आर गिविंग इट ऑन द पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन बेसिकली. And then sixth point here, the public sector banks will play an important role in the industry due to its number of branches and the foreign bank facing the constraint of limited number of branches. Hence, in order to achieve an efficient banking system, the onus is on the government to encourage the public sector bank to be run on professional line also. ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अभी नॉट ओनली द प्राइवेट सेक्टर बैंक बट इवन द पब्लिक सेक्टर बैंक आर हेल्पिंग द इंडस्ट्रियल. तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, मतलब जस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक पहले कैसे जाने जाते थे कि बस एक पब्लिक का जो उनका जो प्रॉपर नीड्स वगैरह उसको हैंडल करने के लिए, लेकिन अभी क्या, और जो इंडस्ट्री रहेगा तो इंडस्ट्री के लिए अलग से बैंक रहेगा करके, सो दैट वे इट यूज टू हैपन. लेकिन अभी क्या हो गया कि बहुत सारे कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे हो चुके हैं कि जो इवन इंडस्ट्री को लिए पैसा देते हैं, इवन एग्रीकल्चर के लिए पैसा देता है, एजुकेशन के लिए पैसा देते हैं, अगर आपको रिनोवेशन करना है उसके लिए पैसा दिया जाता है. फॉर मेनी थिंग्स दे आर कवरिंग अप. सो दिस इज व्हाट द रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ योर बैंकिंग सेक्टर दैट वी कैन से. मतलब टोटली चेंज हो चुका है. जो पहले बैंकिंग सेक्टर था अभी बिल्कुल ऐसा बैंकिंग सेक्टर नहीं रहा है. अगर किसी को भी बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना है तो मैं तो एक ही सजेस्ट करूंगी, यू शुड बी कंप्यूटर लिटरेट. बस उतना होना चाहिए आपको, डिजिटली लिटरेट होने चाहिए आप, आपको ये सारी चीज़ें डिजिटली हैंडल करनी आनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट है डीरेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम. Okay, we will see here this point. Then impact of financial sector reforms in India. इसका एक ही अगर इंश्योर आप लोग कहोगे इम्पैक्ट क्या हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का, देन वी कैन से दैट द टोटल चेंजेस हैज बीन हैपन.
The banking sector has totally transformed. Now we are giving more focus on the digital, or we can say we are giving more focus on the online banking. The pressure of non-performing asset is there. Yes, it is true, but this pressure is coming, as we already seen. This is because of that the Indian economy is not performing well. When the economy is failed to perform well, so that will going to affect on the public, and the public will going to get affected. Then definitely they will not be in a position to repay the loan. So that we can say. लेकिन आप लोग एक बात कह सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की वजह से बहुत सारे नए नए बैंक्स आए हैं नए नए चीज़ों के लिए. जैसे कि इवन अभी माइक्रो फाइनेंस, अगर तुम्हें छोटा मोटा भी फंड लोन चाहिए 10,000 का 15,000 का, तो वो भी आपको लोन दिया जाता है. ठीक है. उसके बाद में अभी बहुत सारे पेमेंट के अलग अलग ऑनलाइन के ऐप आ चुके हैं, तो इजीली यू कैन डू द ट्रांजैक्शन हियर. तो मतलब द अदर वे वी कैन से फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की जो इंडियन सेक्टर पहले जो था, इंडियन बैंकिंग सेक्टर, नाउ वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ बैंकिंग सेक्टर. इट इज टोटली चेंज नाउ. ओके, मैं ये हो गया, आपको मैंने इन शॉर्ट बता दिया इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या है करके. देन डी रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम का थोड़ा पढ़ लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप विद दिस चैप्टर. See, prudential norms were introduced for income recognition, asset clarification, provisioning of delinquent loans, and for capital adequacy. In order to reach the stipulated capital adequacy norm, substantial capital were provided by the government to the public sector bank. Government preemption of bank resources through statutory liquidity ratio and the cash reserve ratio brought down in steps. Interest rate on the deposit and the lending side almost entirely were deregulated. New private sector bank allowed to promote and encourage the competition. PSB were increased to approach the public for raising resources. Recovery of debts due to banks and the Financial Institution Act 1993 was passed, and special recovery tribunal set up to facilitate क्विकर रिकवरी ऑफ लोन एरियर. तो यहाँ पे डी रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं. तो उन्होंने यहाँ पे एक कहा है कि अभी गवर्नमेंट हेल्प करता है कि कोई भी बैंक को ज़्यादा वहाँ पे डिफिकल्टीज ना फेस हो, तो कैपिटल एडिक्वेसी को वहाँ पे सेटल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट साइड में रखना चाहिए करके लिटरली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आरबीआई को कह के जो एसएलआर और सीआरआर का रेट है उसको कम कर दिया है. तो उनके ऊपर अभी कुछ इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं कि उतना अमाउंट आप लोग आरबीआई में डिपॉजिट करो ही, तो ही आपका मतलब वो जो डिपॉजिट करने वाले अमाउंट से क्या होता है कि अगर वो अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो बैंक के पास पैसा कम रहता है लोगों को लेन करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए. इसके लिए अभी लिटरली गवर्नमेंट खुद से फेवर कर रहा है कि एसएलआर एंड सीआरआर कम करो, आरबीआई के पास पैसा कम डिपॉजिट करो, लेकिन तुम लोग आपको अगर प्रॉफिट कमाए सो दैट प्रॉफिट यू कैन स्टार्ट अर्निंग. तो वो सब उन्होंने डीरेगुलेट कर दिया, मतलब उन्होंने कम कर दिया, ज़्यादा उसका इतना प्रेशर नहीं रखा है किसी भी बैंक के ऊपर. देन अगेन उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक का रोल थोड़ा सा कम कर दिया, उनका थोड़ा सा प्रेशर अभी कम कर दिया है. So now they have given chance to the private sector bank also to handle all this kind of banking activities of the public. पहले लेकिन अभी भी अगर आप लोग जो एक चीज नोट करोगे तो people are more preferring to keep their amount into the public sector bank rather than in private sector. What do you all say? Am I right or not? ऐसा आप लोगों का भी वैसा ही थिंकिंग है क्या? बिकॉज मेरा ऐसा थिंकिंग है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में पैसा रखना उससे बेटर है कि अपना पब्लिक सेक्टर में रखे करके. व्हाट डू यू ऑल से? आप लोग Yes, ma'am. करेंगे यस मैम अग्री. है ना. तो हम लोग अभी लेकिन भले वहाँ पे डीरेगुलेशन किया है उन्होंने, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, बट स्टिल वी आर गिविंग मोर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर बैंक ऑल्सो. ठीक है. एंड उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स वेर एनकरेज टू अप्रोच द पब्लिक फॉर रेजिंग रिसोर्सेज. हाँ, उन्होंने लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक को भी कहा कि आप भी अपनी तरफ से कुछ एडवांटेज ऐसे करो, कुछ नई नई टेक्निक लेके आओ कि जिससे लोग आपके अंदर भी ज़्यादा, आपके पास भी ज़्यादा पैसा डिपॉजिट रखेंगे. बट आई मस्ट से कि ये हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन जो लोग रिस्क टेकर रहते हैं ना, कि जिनको लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलर बैंक में मैं पैसा डालने के बाद मुझे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू पैसा मिल रहा है, सो एट दैट टाइम वी आर रेडी टू कीप आवर मनी इन टू द कोऑपरेटिव एंड इन द प्राइवेट बैंक ऑल्सो. तो लोगों का ये भी थिंकिंग होता है. तो वो भी सब पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करना चाहिए व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर बैंक कि कहाँ से हमें ज़्यादा पैसा मिलता है क्या. बट रिस्क तो मैं कहूँगी कि यस, प्राइवेट सेक्टर बैंक पे ज़्यादा रिस्क होता है कंपेयर विद द पब्लिक सेक्टर बैंक. एंड देन बैंकिंग लेंडिंग नॉर्म्स, मतलब जो लोन देना वगैरह रहता था अभी उसको थोड़ा लिबरलाइज कर दिया है.
पहले मतलब लोन लेना ही, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना ही बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर रहता था, तो अभी उन्होंने उसको भी थोड़ा लिबरलाइज करके रखा हुआ है करके। देन अगेन, बैंक आस्क्ड टू सेट अप asset liability management system. RBI guidelines issued for risk management system in bank encompassing credit, market, and operational risks. A credit information bureau being established to identify bad risks, derivative products such as forward rate agreements and the interest rate swaps introduced. अच्छा, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट को हमेशा सामने रखने के लिए कहा, मतलब प्रेजेंट करने के लिए कहा आरबीआई के पास, so that immediately RBI can take action if suppose any of the bank is showing maximum non performing asset here, तो वहाँ पे बैलेंस शीट हमेशा हमें दिखाना पड़ेगा आरबीआई के पास वगैरह. So this way they have change in the system. Okay, so now it shows less than 1 minute. Where is there? Alia, have you taken the attendance? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, ठीक है, चलो लेक्चर खत्म हो जाएगा अभी अपना. एंड सी, ग्रुप लीडर्स ओनली 25 स्टूडेंट्स आर देयर. हाँ, बहुत कम लोग हैं, मुझे नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं चलेगा. वी नीड टू हैव एटलीस्ट 40 स्टूडेंट इन अ क्लास, because we have like admission is almost above 50 now.